Good morning, students. Today we are going to revise the chapter that is executive, and we are going to revise this chapter in the form of question answer. So, first of all, what is an executive? It is an organ of government which deals with the policies uh, followed by the legislature. ठीक है ना? It deals with the implementation of the policies that are followed by legislature. So there are two types of executive. One is the constitutional monarchy, that is in England, and another is parliamentary republic, that is in India. In which country we find semi-presidential executive? We find semi-presidential executive in Sri Lanka, France, and in Russia. What is the tenure of the President of India? The tenure of President of India is 5 years. He can resign, or he, if he likes, before the completion of his term of his office. Or we can say the president can be removed from his office through an action of impeachment if he does not work according to the constitution. दो ही चीज़ें हैं. प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया में 5 ईयर्स के लिए होता है. हम प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटा सकते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा, अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहे हैं अपने ऑफिस में. So, how is the vice president elected in India? The vice president is elected by the members of both the houses of parliament, means Lok Sabha and Rajya Sabha, as well as on the basis of proportional representation. How a vice president can be removed from his office? A vice president can be removed from his office by a resolution of Rajya Sabha agreed to by Lok Sabha, but no resolution would moved for this purpose without a notice of 14 days. ठीक है ना, कि 14 डेज प्रायर कोई भी नोटिस, राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन जाएगा, उस पर लोकसभा भी एग्री होगी, तो दोनों अगर हाउसेज उस पर एग्री करते हैं तभी हम उसको उसके ऑफिस से हटा सकते हैं. Any two powers of what are the powers of vice president of India? ही इज़ एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं बेटा हमारे वाइस प्रेसिडेंट. ही शैल एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन. दूसरा उनका काम होता है कि ही वॉज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट हैज़ एन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, या वो उनको रिज़ाइन कर दिया जाता है, या उनके पद से हटा दिया जाता है, तो उनकी एब्सेंस में फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग देयर शिल बी ए काउंसिल दैट एड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट्स. आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग एक मिनिस्टर की काउंसिल होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, उनको अपनी सलाह देगी. ठीक है ना. So, the president shall act on the advice of prime minister, the leader of the ruling party. The members of the council's minister shall not be exceed 15% of the total members of Lok Sabha, determined by the 91st Amendment Act of 2003. 2003 में एक एक्ट आया था बेटा, दैट वाज कॉल्ड एज 91st अमेंडमेंट एक्ट. इसके अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो टोटल लोकसभा के मेंबर्स के 15% होंगे. समझ आया? 15% जो मेंबर्स होंगे टोटल लोकसभा में जितनी सीट्स हैं, तो 543 का जो 15% आएगा उतने मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं. अब बात आती है हु इज़ अ गवर्नर फर्स्ट. ए गवर्नर इज़ अ हेड ऑफ द स्टेट. ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. So what is the tenure of governor? The governor is appointed for of 5 years, though he can resign earlier also, and then the president too, if he likes he can remove from his office. तो गवर्नर का भी सेम प्रोसीजर होगा. वो 5 साल से पहले अपने ऑफिस से रिज़ाइन भी कर सकते हैं, या उनको भी उनके ऑफिस से जो है निकाला जा सकता है, और उनके टेन्योर को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है. बट स्टेट लेजिस्लेचर जो है गवर्नर को नहीं हटा सकती. सपोज करो हरियाणा के गवर्नर हैं, तो हरियाणा के स्टेट असेंबली जो है वो गवर्नर को उनके पद से नहीं हटा सकती. वो जो है वो प्रेसिडेंट ही उनको उनके पद से हटा सकते हैं. So executive is an organ which enforce the will of legislature and to maintain law and order in the society and runs the administrative of the country.
So what is, this is a single executive. Now what do you mean by plural executive? In a plural executive, the authority to direct is exercised not by a single authority, मतलब single authority कोई order नहीं करेगी, but by a group of persons having co-equal status authority. Swiss Federal Council means वहाँ पे 2 councils हैं बेटा, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड में, तो 2 वहाँ पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है. Real executive council of ministers along with the prime ministers as the head of the central level and the chief minister along with this council of ministers at the state level are the real executives in India. तो real executive जो होते हैं prime minister along with his cabinet ministry or his council of ministers and the chief ministers of the state along with their ministers, they are the real executives in the country. Classifications of civil services, all civil services, देखो इसमें क्या आती है, आईएएस आती है सबसे पहले, फिर आईपीएस आती है, सेंट्रल सर्विसेज में क्या आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज में दोनों आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज आती हैं, सेंट्रल सर्विसेज में फॉरेन सर्विसेज और रेवेन्यू सर्विसेज आती हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ सर्विसेज होती हैं, वो सेल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज के अंडर आते हैं बेटा. तो ये जीके क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. मेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ देखो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट की टेन्योर कितना होता है, कैसे हम उसको उठा सकते हैं. तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर अ पर्सन टू बिकेम द प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो ही शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा कि ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया. ही शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा के लिए मेंबर क्वालिफाइड हो चुके हों. ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो मतलब वो किसी पोस्ट पे नहीं होने चाहिए लोकसभा की गवर्नमेंट में. ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर इफ़ ही मस्ट रिजाइन. मान लो किसी पर्सन को आप प्रेसिडेंट बना रहे हो और वो लोकसभा या राज्यसभा या किसी स्टेट असेंबली के मेंबर हैं, तो वो पहले वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, तभी वो जो है एज प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकते हैं या नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को. अगर वो मतलब वो पोस्ट पे हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं स्टेट या सेंट्रल असेंबली में, तो वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकते, ठीक है ना. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब कितने टाइप की होती है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. सो द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इंडिपेंडेंट हेड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हेड होते हैं. यू कैन से foreign affairs ministers, your home ministers, your HRD ministers, तो they are the independent head होते हैं ये, ठीक है ना. डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जो है वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को. दे आर समथिंग गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ सम पोर्टफोलियोज. स्टेट मिनिस्टर्स को कुछ इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, बट दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स. डेप्यूटी मिनिस्टर्स डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बट असिस्ट आइदर द कैबिनेट और द. जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ए गुड एग्जीक्यूटिव. सो दे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड नॉट टू लेट फुलफिल इविल इंटेंशंस ऑफ एनीबॉडी. किसी भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का काम यही होता है. टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन to avoid financial fluctuations in the country and to maintain stability in economy of the country, ठीक है ना. So what is the relation between council of ministers and legislative minister? Chief ministers along with the council of ministers is the leader of majority party in the legislative assembly. chief minister होगा legislative assembly में. तो all the ministers participate in the meeting of legislature, discuss the various topic and express their opinion on it. The session of legislatures are called after the will of the council of ministers. तो session of legislature जो होते हैं वो ministers की will के, council of ministers की will के according बुलाए जाते हैं.
व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर? गवर्नर जो होता है he has well as the one may suspend or end the session. गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अकेला ऐसा इंसान होता है जो उसको सस्पेंड कर सकता है, उस सेशन को एंड कर सकता है, मैसेज भेज सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। ही साइन ऑल द बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेट, जितने भी बिल जैसे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, लोकसभा से जितने भी बिल जाते हैं प्रेसिडेंट साइन करते हैं, वैसे ही स्टेट असेंबली से जितने भी बिल जाएंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से वो सारे के सारे गवर्नर साइन करेगा। नो बिल बिकम लॉ टिल ही डज नॉट सेंशन इट। कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता जब तक गवर्नर उसके ऊपर साइन नहीं करेगा, उसको सेंशन नहीं करेगा, मीन्स उसको पास नहीं करेगा। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। गवर्नर चाहे तो किसी भी स्टेट में, मतलब वो पर्टिकुलर जिस स्टेट का है उस स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और वहाँ पे नए सिरे से इलेक्शन के लिए कॉल कर सकते हैं। सो हाउ इज़ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर एक नॉमिनी होगा सेंट्रल कैबिनेट का, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो अदर मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, टू हैव अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिज पोस्ट। देखो अब स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये रूलिंग पार्टी की अगर स्टेट में भी गवर्नमेंट है तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर को सारी बात सही से बताएगा, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर रिलाई कर सकता है कि इस स्टेट के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो हो रही हैं, नहीं हो रही है। तो गवर्नर इज़ दैट पर्सन whom which on which the prime minister can rely for the functioning of the states। ठीक है ना। तो मेंशन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गवर्नर। सो द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो यही आएगा, ही शुड बी एट द एज ऑफ 35 ओनली, एंड देन ही कैन बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ही वही सेम बात है, ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ही उसके पास भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जहाँ उसको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। और ही मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। हाउ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव, वही है, प्रेजिडेंट कैन बी इलेक्टेड फॉर ए टेन्योर, ही कैन बी बाय इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सिर्फ प्रेसिडेंट को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर इम्पीचमेंट महाभियोग आंदोलन चलाकर उनको हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को। दिस में भी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस, ये दोनों में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है, आइदर इन राज्यसभा और इन लोकसभा। और अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है, ठीक है ना, देन इट्स एक हाउस में, तो उसको फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा और दूसरा हाउस भी उसको अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास करता है तो ही हम प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर की क्या होती हैं? ही इज़ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट। जितने भी लॉज होंगे एग्जीक्यूटेड उसके नाम पे जाएंगे ये, एंड ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है ना। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय हिम, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वही अपॉइंट करेंगे। ही अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, वैसे ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और उन्हीं की चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। ही हैज़ अ पावर टू डिसमिस द काउंसिल, उनके पास ये भी पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंटेड होगा? दिस इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा। तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट बाय द गवर्नर अपॉइंट करता है। अगर सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो गवर्नर जो है वो डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द पर्सन हूम ही थिंक्स फिट फॉर टू सपोर्ट द मेजॉरिटी। तो उस केस में क्या करेंगे कि गवर्नर जो है वो अपने सोच से कि इस आदमी को जो है मैक्सिमम सपोर्ट मिल सकता है दूसरे लोगों का, वो उनको फिर पार्टी बनाने के लिए बुलाएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, और उनको कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप जो है अपने इतने टाइम में अपना बहुमत स्थापित जो है वो
शो प्रेजेंट कीजिए. आफ्टर दैट ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. इफ ही फेल्स टू turn show its majority, then he cannot be the or she cannot be the CM of the state. तो ये एग्जाम्पल है कि भजनलाल को अपॉइंट किया गया था. कांग्रेस आई लीडर गवर्नर GD टैगोर ने किया था 1982 में हरियाणा में. उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स उन्हीं की पार्टी को मिले थे, मतलब मैक्सिमम MLA उनके थे, तो इसीलिए उनको अपॉइंट किया गया था. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स.